Hello children, hope you all doing good. Let's start today's chapter, Adaptations in Animals. Learning objectives. The importance of adaptations in animals, the classes or groups of animals based on their habitats and food habitats, and the adaptation of different groups of animals. Like plants, animals also adjust themselves to their habitats. The animals that adapt themselves to their habitats survive, and those who cannot do so die out. Millions of years ago, huge animals called dinosaurs used to roam on the earth. Now, there are no dinosaurs. Do you know why? Some scientists believe that the dinosaurs could not adjust to a sudden change in the Earth's climate. According to their habitats, animals can be divided into 5 main groups: terrestrial animals, aquatic animals, amphibians, aerial animals and arboreal animals. देखिए, जिस तरह से प्लांट्स अपने आप को एडजस्ट करते हैं अपने हैबिटेट के अराउंड, एनिमल्स को भी करना पड़ता है. ओके, उनका भी सेम प्रोसेस होता है, अडेप्टेशन का प्रोसेस. तो बहुत सालों पहले डायनासोर्स हुआ करते थे, बट अब वो अर्थ से गायब हो चुके हैं. क्यों? क्योंकि साइंटिस्ट का मानना है कि बहुत सारे सडन चेंजेस आए अर्थ के क्लाइमेट में, जिसमें वो सर्वाइव नहीं कर पाए, जिसमें वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाए. तो हैबिटेट के बेसिस को एनिमल्स को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. तो लेट अस लर्न हाउ दीज एनिमल्स अडेप्ट देमसेल्व्स टू देयर हैबिटेट्स. Terrestrial animals. Animals that live on land are called terrestrial animals. The condition on land differ from place to place. In some places it is very cold, while at other places it is very warm. Terrestrial animals. Animals that live on land are called terrestrial animals. The conditions on land differ from place to place. In some places it is very cold, while at other places it is very warm. Terrestrial animals have a well-developed nervous system. They have strong senses which help them to look for food and escape from their enemies. They have lungs to breathe in air. Most terrestrial animals have limbs to move from place to place. Let us study the adaptation in some terrestrial animals. अब देखिए, जो एनिमल्स लैंड पे रहते हैं उन्हें टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं. अब कंडीशन जो है वो डिफरेंट होती है प्लेस टू प्लेस. कुछ जगहों पे बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, कुछ जगह पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का एक वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है. इनकी स्ट्रॉन्ग सेंसेस होती है जो कि इनको हेल्प करती है फूड को देखने में या फिर अपने एनिमीज से बचने के लिए. इनके पास लंग्स होते हैं ब्रीथ करने के लिए, एंड ज़्यादातर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के पास लिम्स होती हैं जिससे कि वो प्लेस टू प्लेस मूव करते हैं. अडेप्टेशंस इन द कैमल. The camel lives in a desert. The desert is very hot during the day and very cold at night. There is very little food and water. The camel shows remarkable adaptations to live in the desert successfully. It can live without water for many days. अब देखिए, कैमल आपको पता है डेजर्ट में रहता है. डेजर्ट में काफ़ी एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं. तो उसने किस तरह से अपने आप को अडेप्ट कर रखा है? सबसे पहले तो ये बिना पानी के कई दिनों तक जिंदा रह सकता है. It can live without food for many days. When food is available, it eats plenty of it. It stores extra food in its hump in the form of fat. It uses extra fat when food is not available. Fat gives it energy. It has padded feet that do not sink in the soft sand and help it to walk easily. Its long legs keeps its body much above the hot sand. अब देखिए, ये बिना खाने के भी कई दिनों तक रह सकता है, लेकिन अगर इसे खाना मिलेगा एक बार में काफ़ी सारा खा लेता है, एंड देन एक्स्ट्रा फूड को ये अपने हम्प में स्टोर कर लेता है फैट के फॉर्म में. और ये एक्स्ट्रा फैट इसे कब यूज़ करता है? जब फूड अवेलेबल नहीं होता है. इसके पैडेड फीट होते हैं जिससे कि सैंड, सॉफ्ट सैंड में इसके पैर जो है वो सिंक नहीं होते और वो ईजिली वॉक करता है. इसके अलावा इसके जो लेग्स होती हैं काफ़ी लंबी होती हैं और हॉट सैंड से काफ़ी ऊपर होते हैं. इट हैज़ हेयर ऑन इट्स eyelashes and in its nostrils. These hair prevents the scent to enter its eyes and nostrils. The camel sweats very little to save water. It also excretes very little urine. It can raise its body temperature as much as 107.6 degrees Celsius when it is very hot. Do you know that the camel is the only mammal that can change its body temperature as its will? No doubt all these adaptations make the camel the ship of the desert. अब इसके अलावा क्या है? देखिए, इसकी नॉस्ट्रल्स में एंड इसके आई लैशेस में आपके हेयर होते हैं, तो इनको ये बंद कर लेता है, जैसे कि सैंड से इसको प्रोटेक्ट करते रहते हैं. कैमल बहुत थोड़ा सा ही स्वेट करता है. इससे क्या होता है कि काफ़ी सारा वाटर सेव हो जाता है. ये यूरिन की फॉर्म में भी बहुत थोड़ा सा एक्सक्रीट करता है, एंड ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को, आप देख पा रहे हैं ये कितना ज़्यादा है, इतने टेम्परेचर तक ये इसको क्या करता है? रेस कर सकता है. और कैमल ही इकलौता ऐसा मैमल है जो अपने बॉडी टेम्परेचर को अपनी विल यानी अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है. और इन्हीं अडेप्टेशंस की वजह से कैमल को कहा जाता है द शिप ऑफ द डेजर्ट. डू यू नो व्हेन वाटर इज अवेलेबल अ कैमल कैन ड्रिंक ओवर 200 liters a day. The camel's nostrils can close up completely to block out scent.
The camel has a double row of eyelashes to protect its eyes from sand and sun. जब वाटर अवेलेबल होता है तो कैमल एक बार में 200 लीटर्स तक वाटर पी सकता है, और जो कैमल के नॉस्ट्रल है वो उसको कम्प्लीटली बंद कर सकता है जिससे कि सैंड उसमें ना आ जाए. कैमल की डबल रो होती है आईलैशेस की, जो कि उसकी आइज को प्रोटेक्ट करते हैं सैंड एंड सन से. Adaptations in the polar bear. The polar regions are very cold. They are covered with snow throughout the year. Animals that live in the polar regions have fur and fat under their skin which keep them warm. Let us see how a polar bear adapts itself in such a cold habitat. अब पोलर रीजन में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, स्नो कवर्ड एरिया होता है, राइट, पूरे साल स्नो रहता है. तो इस यहाँ पे जो एनिमल्स रहते हैं जैसे कि पोलर बेयर, उसका क्या होता है, उसमें की बॉडी में फर होता है, उसके स्किन के अंडर फैट होता है जो कि इसको वार्म रखते हैं. तो चलिए कुछ अडेप्टेशंस देखते हैं किस तरह से पोलर बेयर अडेप्ट करते हैं अपने आप को कोल्ड हैबिटेट में. वो पढ़ तो लिया, ये बाद में आएगा. ठीक है, मैं हिंदी से बोलती हूँ. ठीक है, तो चलिए देखते हैं पोलर बेयर ने किस तरह से अपने आप को अडेप्ट किया है ऐसे कोल्ड हैबिटेट में. द बॉडी ऑफ ए पोलर बेयर इज कवर्ड विद हॉलो हेयर. These hair trap air and keeps its body quite warm. It has a thick layer of fat under its skin. Fat gives it warmth. It has hairy soles that do not slip on the snow. It has white color that merges with the snow and helps it in hunting and also help it to escape from its enemies. The polar bear is an excellent swimmer. अच्छा, जो पोलर बेयर है उसकी बॉडी कवर्ड होती है हॉलो हेयर से, जो कि एयर को ट्रैप करते हैं एंड उसकी बॉडी को वार्म रखते हैं. इनकी बॉडी में थिक लेयर ऑफ फैट होता है जिससे इनको वार्मथ मिलता है. इनके हेयरी सोल्स होते हैं जो कि स्नो में फ्लिप रुको इनकी बॉडी में थिक लेयर ऑफ फैट होती है इनके स्किन के अंडर जिससे इनको वार्मथ मिलता है. इनके हेयरी सोल्स होते हैं जो स्नो में स्लिप नहीं होते, एंड इनका जो वाइट कलर होता है स्नो के साथ मर्ज हो जाता है एंड फिर इसको हंट नहीं किया जा सकता और ये अपने एनिमी से बच सकता है. पोलर बेयर काफ़ी अच्छे स्विमर भी होते हैं. Do you know bears are the largest meat-eating land animal? The biggest bear is the Alaskan brown bear, which grows to 2.7 meter long and weighs up to 770 kilogram. Bears आपके largest meat-eating land animals होते हैं, and सबसे बड़ा जो आपका bear है Alaskan brown bear, ये आपका 2.7 मीटर तक लंबा होता है and इसका weight होता है 770 किलोग्राम. Penguins also live in the polar regions along the coast of Antarctica and nearby islands. They also show some remarkable adaptation. आपके penguins भी polar regions में ही रहते हैं. तो चलिए इनके adaptation देखते हैं. Their feathers waterproofed with oil. They have a thick layer of fat under their skin which keeps them warm. Their main diet is fish. So penguins are superb swimmers to chase fish. सबसे पहले इनके जो feathers होते हैं waterproofed होते हैं oil के साथ, और एक थिक लेयर होती है फैट की इनके स्किन के अंडर जिससे कि ये वार्म रहते हैं. इनका मेन डाइट है फिश. तो पेंगुइन्स आपके बहुत ही अच्छे स्विमर्स होते हैं और फिश कैच करते हैं. पेंगुइन्स सिट क्लोज टू ईच अदर टू कीप देमसेल्व्स वार्म. दे आर ऑल्सो वाइट इन कलर टू मर्ज कम्प्लीटली विद देयर सराउंडिंग्स. अब पेंगुइन जो एक दूसरे के साथ बहुत क्लोज होकर बैठते हैं जिससे अपने आप को गर्म रखते हैं, एंड वाइट कलर के होते हैं तो ये अपने आप को मर्ज कर लेते हैं अपने सराउंडिंग के साथ. Reptiles such as crocodiles and lizards cannot survive in extreme cold. They are called cold-blooded animals. It means their body temperature changes with the temperature of their surroundings. To protect themselves from extreme cold, lizards and salamanders go for a long sleep during winter. This long sleep is called hibernation. During hibernation, all activities of the body slow down to save energy. अब कुछ आपके रेप्टाइल्स जैसे क्रोकोडाइल या लिजर्ड है, ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम जब कोल्ड होती है तो ये सर्वाइव नहीं कर पाते. इनको कहा जाता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. इसका मतलब क्या है कि इनकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो चेंज हो जाएगा आपके सराउंडिंग के साथ. तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्सट्रीम कोल्ड से लिजर्ड एंड सैलामेंडर्स जो एक लंबी सी स्लीप में चले जाते हैं, उस स्लीप को बोलते हैं हाइबरनेशन. और हाइबरनेशन के दौरान क्या करते हैं, इनकी एक्टिविटी जो होती है बॉडी की कम हो जाती है जिससे कि एनर्जी सेव होती है. Aquatic animals. Animals that live in water are called aquatic animals. Fish, crabs, snails, dolphins, whales, seals, and walruses are some common animals that live in water. Fish and crabs breathe through gills. Whales, seals, and walruses are mammals. They breathe through the lungs. That is why they have to come up to the surface of water from time to time to breathe. Aquatic animals यानी जो पानी में रहते हैं, right?
अब जैसे कि आपके फिशेज एंड क्रैब्स होते हैं अपने गिल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं, वेल, सील और वॉलरसेस ये आपके मैमल्स हैं तो ये लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं, तो इसीलिए ये पानी के सरफेस पे आते हैं टाइम टू टाइम ब्रीथ करने के लिए. Let us learn how a fish adapts itself to live in water successfully. The body of a fish is a streamline. It is broad in the middle and narrow at the end. Such a body helps a fish to cut through the water easily. The scales on the body of a fish are shiny and slimy. They do not allow water to stick on the body. The fins help the fish is swimming, maintaining balance and changing direction in water. अच्छा अब देखिए, फिश की बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है, मतलब बीच में से तो आपकी वो क्या होगी, ब्रॉड होगी मिडल से, एंड एंड से वो आपकी नैरो हो जाएगी. तो ऐसी बॉडी हेल्प करती है, जो फिश की स्ट्रीमलाइंड बॉडी वाटर को कट करने में इजीली हेल्प करती है. जो बॉडी में इनके स्केल्स होते हैं फिश के काफ़ी शाइनी और स्लाइमी होते हैं, इससे जो वाटर है वो उनकी बॉडी पर स्टिक नहीं होता. और जो फिश के जो फिन्स होते हैं उनको स्विम करने में हेल्प करते हैं, बैलेंस को मेंटेन करते हैं एंड डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करते हैं वाटर में. The gills of a fish have numerous blood vessels. When water passes through the gills, the blood absorbs oxygen from the water and carries it to different parts. Thus, gills are suited for breathing in water. अब जो गिल्स होते हैं फिश के उसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, तो जब वाटर पास होता है गिल्स पे तो जो ब्लड है वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं वाटर से एंड बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाते हैं. इसीलिए जो गिल्स हैं they are suited for breathing in water. Many fish have air-filled pouches called swim bladders in their bodies. बहुत सारे फिश की बॉडी में air-filled pouches होते हैं जिन्हें कहते हैं swim bladders. These bladders make the body light so that the fish can float easily at any depth in water. तो इन ब्लैडर की वजह से फिश की बॉडी काफ़ी लाइट हो जाती है. Some fish like sharks have a very good sense of smell. They can detect one part of animal's blood in 100 million parts of water. जैसे शार्क्स होती हैं, इनकी काफ़ी अच्छी सेंस ऑफ स्मेल होती है, तो ये 1 पार्ट ऑफ एनिमल ब्लड को ये डिटेक्ट कर लेती हैं इन 100 मिलियंस पार्ट ऑफ वाटर. Animals such as whales, seals and walruses have a layer of fat under their skin. This is called blubber. The blubber keeps them warm so they can survive in temperature as low as -60 degrees Celsius. Frogs and ducks, which spend part of their life in water, have webbed feet to swim in water. Similarly, turtles have paddle-like limbs to push water. अब जैसे whales, seals या walruses की बात करें तो उनकी स्किन के नीचे फैट होता है जिसे कहते हैं ब्लबर, एंड आपको पता है ब्लबर इन्हें वार्म रखता है इवन -60 डिग्री सेल्सियस में भी. कितना कम टेम्परेचर है ये. फ्रॉग्स एंड डक्स ये अपना ज़्यादा टाइम जो है पानी में स्पेंड करते हैं तो उनके वेब फीट होते हैं जिससे ईजिली स्विम करते हैं. इसी तरह से टर्टल के उनके पैडल लाइक लिम्स होते हैं जो वाटर को पुश करते हैं. Amphibians. Animals that live both on land and in water are called amphibians. Frogs, toads and salamanders are amphibians. On land, amphibians breathe through their lungs. In water, their moist skin absorbs oxygen from the water, so they breathe through their skin in water. The frog has short front legs and long back necks. It uses its back legs for jumping on land. The webbed feet of a frog help it in swimming. अब जो एनिमल्स आपके लैंड में भी रहते हैं, वाटर में भी रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं एम्फीबियंस. बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आपके एम्फीबियंस के. तो देखिए लैंड पे जो ये एम्फीबियंस होते हैं वो लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं और जब ये पानी में होते हैं तो अपने मॉइस्ट स्किन के थ्रू ये ब्रीथ करते हैं, राइट. फ्रॉग के शॉर्ट फ्रंट लेग्स होते हैं और बैक लेग्स काफ़ी लंबे होते हैं, तो ये एक्चुअली अपने बैक लेग का यूज़ करता है जब उसको लैंड में जंप करना होता है, और जिसके वेब फीट होते हैं इसको स्विमिंग में हेल्प करते हैं. डू यू नो द Goliath frog of Africa is the world's largest frog. It can grow over 30 centimeter long. The cane toad of Australia is the world's biggest toad. It can weigh about 3 kilogram. आपका जो Goliath frog है अफ्रीका का, ये लार्जेस्ट फ्रॉग है, ये 30 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है. और जो आपका केन टोड है ऑस्ट्रेलिया का, ये बिगेस्ट टोड है वर्ल्ड का, इसका वेट अराउंड होता है 3 kg. Amphibians are also cold-blooded animals. They cannot tolerate extreme cold or hot, so they go for a long sleep during summer and winter. Amphibians भी आपके cold-blooded animals होते हैं, इसीलिए extreme cold या hot को ये tolerate नहीं कर सकते, तो ये भी लंबे sleep पे चले जाते हैं summer या winter में. The winter sleep is called hibernation and the summer sleep is called aestivation. अच्छा, hibernation के बारे में तो पढ़ा ही था कि जो winter sleep होती है hibernation, but जो summer sleep होती है that is aestivation. Remember that. Aerial animals. Animals that fly in the air are called aerial animals. Birds, bats and many insects are examples of aerial animals. Among aerial animals, birds are best adapted to fly in the air. That is why they are sometimes called the masters of air.
एरियल एनिमल, आप इसमें आपके आते हैं बर्ड्स या बैट्स या बहुत सारे इंसेक्ट जो अपना ज़्यादातर टाइम स्पेंड करते हैं एयर में। अब इसमें जो एरियल एनिमल्स हैं, बर्ड्स जो हैं वो बेस्ट अडेप्टेड हैं टू फ्लाई इन द एयर, और इसीलिए इनको समटाइम्स कहा जाता है मास्टर्स ऑफ एयर। लेट अस सी व्हाट फीचर्स मेक बर्ड द मास्टर ऑफ द एयर। द बॉडी ऑफ ए बर्ड इज स्ट्रीमलाइन, सच अ बॉडी हेल्प्स इट टू कट थ्रू द एयर विदाउट एनी रेजिस्टेंस। द बोन्स ऑफ ए बर्ड आर hollow, light but very strong. Light bones help it to float in the air. The wings of a bird are attached to the strong flight muscles. These muscles move the wings up and down. The heart of a bird is very powerful. It supplies blood to every part of the body during flight. The tail of a bird helps it to change direction during flight. अब जो बॉडी होती है बर्ड की वो स्ट्रीमलाइंड होती है, ओके, एंड जो बोन्स होते हैं बर्ड के काफ़ी हॉलो और लाइट होते हैं बट वेरी स्ट्रॉन्ग होते हैं, राइट। एंड जो बर्ड के विंग्स होते हैं वो अटैच होते हैं इनके स्ट्रॉन्ग फ्लाइट मसल्स के साथ, और ये मसल्स विंग्स को ऊपर एंड नीचे करने में हेल्प करती है। जो बर्ड का हार्ट होता है काफ़ी पावरफुल होता है और ये ब्लड सप्लाई करता रहता है बॉडी के हर पार्ट तक ड्यूरिंग फ्लाइट। और जो बर्ड की टेल होती है उसको डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करती है। Bats are the only mammals which can fly. They also have wings, but their wings are made up of leather instead of feathers as in birds. Bats have very poor vision, but this does not make them handicapped. They use echolocation to locate their prey. In echolocation, a bat sends out sounds to its prey. The sound comes back to it and helps the bat to locate its prey. They have an excellent sense of hearing. Bats आपके इकलौते ऐसे मैमल हैं जो उड़ सकते हैं। इनके विंग्स भी होते हैं बट इनके जो विंग्स होते हैं वो लेदर से बने होते हैं इंस्टेड ऑफ फेदर्स। बैट्स की विजन काफ़ी पुअर होती है बट इसका मतलब ये नहीं कि वो हैंडीकैप हो गए। ये इकोलोकेशन का यूज़ करते हैं अपने प्रे को लोकेट करने के लिए। तो ये क्या करते हैं, बैट जो है वो साउंड सेंड करता है उसके प्रे तक, और जब साउंड वापस आता है तो उसको पता चल जाता है अपने प्रे का उसका लोकेशन क्या है। इनकी काफ़ी अच्छी सेंस ऑफ हियरिंग भी होती है। Arboreal animals. Animals that spend most of their time on trees are called arboreal animals. Most arboreal animals have strong arms and legs to climb trees. They also have strong claws to hold onto branches. Monkeys, such as spider monkeys, have very long tails. They use their tails to hold onto branches while swinging from tree to tree. Animals जो अपना ज़्यादातर टाइम ट्रीज पे बिताते हैं उन्हें हम कहते हैं आर्बोरियल एनिमल्स। अब इन एनिमल्स की एक खास बात होती है कि इनकी आर्म्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं एंड लेग्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है जिससे ये ट्रीज क्लाइंब करते हैं, राइट। इनके क्लॉज भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं जिससे कि ब्रांचेस को होल्ड करते हैं। मंकीज़ की अगर हम बात करें, जैसे स्पाइडर मंकी है, इसकी काफ़ी लंबी टेल होती है एंड ये अपनी टेल का यूज़ करते हैं ब्रांचेस को होल्ड करने में जब ये ट्री टू ट्री स्विंग करते हैं। स्लॉथ्स आर ऑल्सो आर्बोरियल एनिमल्स. They do everything very slowly. The leaves they eat take a long time to digest and convert into energy. So they need to save their energy. They sleep often and hang motionless for hours when awake. अब sloths जो हैं आपके arboreal animals हैं, ये सारी चीज़ें बहुत slowly करते हैं। जो ये लीव्स खाते हैं उसको बहुत टाइम लगता है डाइजेस्ट होने में और एनर्जी में कन्वर्ट होने के लिए, इसीलिए ये अपनी एनर्जी को सेव करते हैं। तो ये ऑफन ये ज़्यादा टाइम सोए रहते हैं एंड घंटों तक ये मोशनलेस ऐसे ही हैंग रहते हैं जब ये जगे हुए रहते हैं। तो Chameleons are also arboreal animals. A chameleon can use its two eyes to look in two different directions at the same time. It means it can look forward with the one eye and backward with the other. The chameleon also has very long sticky tongue to catch insect. It can also change the color of its skin to mix well with the surroundings. This ability is called camouflage. अब chameleon ये भी आपके arboreal animals होते हैं और इनकी खास बात होती है कि इनकी जो आइज़ होती हैं ये दो डिफरेंट डायरेक्शन में सेम टाइम पे देख सकती है, यानी कि ये फॉरवर्ड भी देख सकते हैं एक आई से एंड दूसरे से पीछे देख सकते हैं। इनकी लॉन्ग स्टिकी टंग होती है जिससे कि इंसेक्ट को कैच करते हैं। ये अपने कलर को चेंज करते हैं अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग एंड इस एबिलिटी को कहा जाता है कैमोफ्लेज। अदर अडेप्टेशंस, एनिमल्स ऑल्सो अडेप्ट देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग हैबिट। नहीं, ये बाद में ही आएगा, ये इसके साथ ही जाएगा। डू यू नो पढ़ते वाला? Do you know flying squirrels have large skin flaps? These flaps help them glide between trees. आपकी जो flying squirrels होती हैं इनकी काफ़ी large skin flaps होती हैं and ये flaps उनको help करते हैं जब ये trees glide करते हैं। Other adaptations, animals also adapt themselves according to their feeding habit. They also show adaptations to protect themselves from predators. Adaptation for food. Animals can be classified in 5 groups according to the type of food they eat. Herbivore.
Plant-eating animals are called herbivores. Cows, goats, deer, zebras, and giraffes are herbivores. They have sharp front teeth to bite the grass. They have flat, strong grinding teeth at the back to chew the food. अब देखिए एनिमल्स को क्लासीफाई किया गया है 5 ग्रुप्स में अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फूड दे ईट. सबसे पहले हर्बीवोर्स आपको पता है जो प्लांट्स या प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, राइट. अब इनके क्या होते हैं, फ्रंट टीथ काफ़ी शार्प होते हैं जिससे बाइट करते हैं ग्रास को. इनके जो ग्राइंडिंग टीथ होते हैं काफ़ी फ्लैट और स्ट्रॉन्ग होते हैं जिससे कि खाने को च्यू करते हैं. Carnivores. Flesh-eating animals are called carnivores. Lions, tigers, and cheetahs are carnivores. They have sharp and strong teeth and claws for tearing the flesh of their prey. Hunting birds like eagles and hawks have sharp claws and hooked beaks to hold and tear the flesh. The sharp claws of these birds are called talons. Flesh-eating animals carnivores होते हैं जो दूसरे animals का flesh खाते हैं. तो इनके काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड शार्प टीथ होते हैं एंड क्लॉज काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं जिससे कि क्या करते हैं एनिमल्स के जो प्रे को ये क्या करते हैं टियर करते हैं. लाइक इसी तरह से हंटिंग बर्ड्स जैसे होती हैं इनकी काफ़ी शार्प क्लॉज होते हैं और इनके क्लॉज को कहा जाता है टेलून्स. Omnivores. Animals that eat both plants and animals are called omnivores. Bears, crows, dogs and cats are omnivores. Man is also an omnivore. अब omnivore क्या होते हैं, जो प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं और दूसरे एनिमल का फ्लैश भी खाते हैं. Scavengers. Animals that eat flesh of dead animals are called scavengers. Vultures, hyenas, and jackals are scavengers. They are sometimes called the sweepers of the jungle as they help in keeping the jungle clean by eating dead animals. Vultures have sharp eyes to scan the ground for dead bodies. They have very weak beaks, so they cannot eat fresh flesh. अब देखिए scavengers आपके वो एनिमल्स होते हैं जो डेड एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं. लाइक वल्चर है, हाइनाज है या कॉल्स है. इनको स्वीपर्स ऑफ द जंगल भी कहा जाता है क्योंकि वो जंगल को क्लीन करते हैं. जब डेड एनिमल्स को खाएंगे तो ऑफकोर्स आपका जो जंगल है वो क्लीन हो जाएगा. अब वल्चर्स की आइज तो काफ़ी शार्प होती है जिससे कि वो ग्राउंड को स्कैन कर लेते हैं किसी भी डेड बॉडीज़ के लिए, बट इनके बीक्स बहुत वीक होते हैं और इसीलिए ये फ्रेश फ्लैश को नहीं खा सकते. Parasites. Animals that live inside or on the bodies of other animals are called parasites. The animals on which parasites depend for their food are called hosts. Mosquitoes, leeches, hookworms and bugs are parasites. They have suckers to suck blood from their host. The needle-like sucker of a mosquito is called proboscis. They deprive their host of the nutrients so they are harmful. अब पैरासाइट्स क्या होते हैं, वो एनिमल जो दूसरे एनिमल की बॉडी पे रहते हैं, राइट, और उन्हें पैरासाइट कहते हैं. तो जो जिस एनिमल की बॉडी पे पैरासाइट रहता है खाने के लिए उसे कहा जाता है होस्ट. जैसे कि आपके मस्कीटोज़ हैं, मस्कीटोज़ क्या करता है, ब्लड सक करता है एनिमल से, किसी दूसरे एनिमल से, ठीक है. तो इनके सकर्स होते हैं जिससे कि ब्लड को सक करते हैं ये होस्ट से. इनका जो नीडल लाइक स्ट्रक्चर होता है जैसे कि मस्कीटो की अगर हम बात करें इसे कहा जाता है प्रोबॉसिस. अब ये क्या करते हैं, क्योंकि ये ब्लड सक करते हैं, राइट, तो जो होस्ट की बॉडी जो है वो न्यूट्रिएंट डिप्राइव हो जाती है, इसीलिए हार्मफुल होते हैं. Adaptation for protection. Animals have developed various ways to protect themselves from their enemies. The ostrich is the world's biggest bird. It cannot fly. How does it escape from its enemies? To escape from its enemy, the ostrich can run at a speed of 70 km per hour. In fact, it is the world's fastest runner on 2 legs. Similarly, a penguin cannot fly, but it is one of the best swimmers. अब देखिए ऑस्ट्रिच वर्ल्ड की सबसे बड़ी बर्ड है लेकिन ये फ्लाई नहीं कर सकती, तो फिर अपने एनिमीज से कैसे बचाती है. ऑस्ट्रिच जो है वो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग सकती है एंड ये वर्ल्ड की फास्टेस्ट रनर भी है विच रन्स ऑन 2 legs. इसी तरह से पेंगुइन भी नहीं आपकी फ्लाई कर सकती बट ये बहुत अच्छे स्विमर्स होते हैं. वाइल्ड बीट्स एंड ज़ीब्रास live in large groups. Their numbers confuse the enemy as it cannot decide which one to make target. अब zebras and जो wild beasts होते हैं ये आपके बहुत सारे बड़े से ग्रुप में रहते हैं, तो अब जो इनका predator होता है वो confuse हो जाता है कि किसको टारगेट करना है इनमें से. Starfish and lizards shade their body parts to fool the attackers. They grow new body parts in place of the lost one. This ability is called regeneration. Starfish and lizards क्या करती है, अपनी body part को shed कर देते हैं attackers को fool करने के लिए, और इनकी जगह पे फिर क्या होता है, फिर जो नया पार्ट फिर से उस लॉस्ट वन की जगह में आ जाता है, तो इसे बोला जाता है रीजेनरेशन. जैसे कई बार आपने लजर्ड को देखा होगा विदाउट टेल, तो एक्चुअल में वो खुद ही उसे शेड कर देती है. The leaf insect and stick insect are almost invisible. They look like what their names suggest. Leaf insect
या स्टिक इंसेक्ट जो है आपके हैं, ये ऑलमोस्ट इनविजिबल होते हैं। बीज एंड वॉस्प हैव स्टिंग्स व्हिच दे यूज टू इंजेक्ट पॉइजन इनटू द बॉडीज ऑफ देयर अटैकर्स। और बीज एंड वॉस्प आपने देखा होगा, इनके पास स्टिंग्स होते हैं, डंक होता है, जैसे इनका कोई अटैकर होता है, ये उसकी बॉडी में उसको इंजेक्ट कर देते हैं। Save animals. Both domestic and wild animals are useful for us. Human being has been hunting wild animals for many years. The skin of animals like tigers, cheetahs, deer and snake is very valuable. Some animals are also hunted for their meat. Today many wild animals are in danger. If we do not protect these animals, they will be lost forever and would become extinct. डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल्स हम सभी के लिए बहुत यूज़फुल है। ह्यूमन बीइंग जो है बहुत टाइम से वाइल्ड एनिमल्स को हंट कर रहा है उनके स्किन के लिए, राइट? और कुछ एनिमल्स को हंट किया जाता है उनके मीट के लिए। तो आज जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो काफ़ी खतरे में हैं और ऐसा भी टाइम आ सकता है कि अगर ऐसी हंट करते रहे तो ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। Our government has taken many steps to protect our wildlife. Many national parks and wildlife sanctuaries have been set up. We have laws to protect our wildlife. We must respect these laws. We must not hunt animals for fun or for their skin. They are our great natural wealth. हमारी गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे स्टेप्स उठाए हैं, जैसे कि नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सेटअप हुई हैं, बहुत सारे लॉज भी बनाए हैं जिससे कि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा सके। इसीलिए हमें इन लॉज को रिस्पेक्ट करना चाहिए। हमें एनिमल्स को सिर्फ फन और उनके स्किन के लिए उनको हंट नहीं करना चाहिए। Let us remember, animals adapt themselves to live in their habitats successfully. Animals according to their habitat are classified as terrestrial, aquatic, amphibians, aerial and arboreal. Animals according to their feeding habits are classified as herbivores, carnivores, omnivores, scavengers and parasites. Animals use different methods to protect themselves from enemies. Animals are a great natural wealth. We should take care of them. एनिमल्स को उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग 5 ग्रुप्स में क्लासीफाई किया गया है, राइट? एंड उनके फीडिंग हैबिट्स के अकॉर्डिंग उनको अगेन 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एनिमल्स डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं अपने आप को अपने एनिमीज से प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड हम एनिमल्स हमारे लिए ग्रेट नेचुरल वेल्थ हैं, तो हमें इनकी देखभाल करनी चाहिए। चिल्ड्रन, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।